ان کے لہجے کو کون کہتے ہیں؟ یہ اختیارات کے مالک ہیں۔ بندے کہتے جی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب حسن نے ایک مرد کو عورت کیا تھا، ہم نے دیکھا تو نہیں۔ تو آج آزما، علی کا جتنا منکر ہوگا ان میں سے کوئی بھی مرد نہیں ہوگا۔ ہمیں فخر ہے، ہم نے ملوکیت کے، ہم نے بادشاہت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہم نے خلافت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ہم نے امامت کو سجدہ کیا۔ خلافت والوں کے ہاں لڑائیاں ہیں، ایک بٹھاتا ہے دوسرا گرا دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں مولوی فضل الرحمان کس تیاری میں ہے؟ میں نے حکومت گرانی ہے۔ ان سے پہلے پوچھو کہ اولے الامر تم کسے سمجھتے ہو؟ کہتے حاکم وقت کو۔ تو پھر تو کیسا اولے الامر کا ماننے والا ہے کہ تو اپنا ہی اولے الامر گرانے جا رہا ہے؟ حکومت والوں کے ہاں یہ جھگڑے ہیں، آج عزت کل توہین۔ امامت والوں کے ہاں یہ جھگڑا نہیں ہے۔ امامت بڑی پرسکون ہے۔ کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، جھگڑا امامت پہ نہیں ہوا۔ امام نے آنکھیں بند کی ہوں، 18 بیٹوں نے تلواریں نکالی ہوں کہ میں امام بنوں گا، میں امام بنوں گا، میں نہیں، انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا ہے۔ پھر مولوی کو شرف نہیں آتی جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟ ووٹوں والا امام نہیں ہوتا، زوار میں ووٹوں والا امام نہیں ہوتا۔ دنیا سمجھ گئی ہوتی تو اس گھر کے جنازے گھروں سے واپس گھر نہ آتے۔ سال کی محنت ہے، اللہ بھائی کی زندگی کرے، اللہ اس گلشن کو مہکتا رکھے۔ جناب ناصر بخاری، جناب برادر ملک زوار، جناب سید ذکی شاہ جی، یہ سارا گلشن ایسے ہی مہکتا رہے۔ جتنے بھی بیٹھے ہو بڑے خوش قسمت ہو، تم آئے ہو غریب کے جنازے پہ، اور آج جنازوں کے رنگ بھی دو ہوں گے۔ میں پڑھوں گا بادشاہ کی شہادت کے اختتام پہ ایک جنازہ آئے گا مستورات میں۔ وہ جنازہ وہ ہے جو بہنوں نے بھیجا تھا، آپ اس جنازے کی بھی زیارت کریں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جنازہ بھی آئے گا جو امت نے واپس بھیجا تھا۔ کوشش میں کرتا ہوں سبب مہیا ہوں، تیری آنکھ سے آنسو آئے، علی کی بیٹی راضی ہو، اللہ میرے بھائی کی پریشانی دور فرمائے۔ یہ جتنے بچوں نے دعا کے لیے کہا ہے، محمد کی بیٹی ان میں جس کی جو دعا ہے، جناب حسن کی کریمی کا واسطہ، وہ دعا قبول ہو جائے۔ جس نے آج حسن کے دسترخوان سے لنگر کیا، رزق لیا، میرا بادشاہ تمہارے رزق میں کمی نہ کرے۔ یہ اس کا دسترخوان ہے جس کی بہنیں بازار میں چادر مانگ رہی ہیں۔ اگلی سطر پہ امتی چپ رہے، سید ہائے ضرور کہے، یہ اس کا دسترخوان ہے جس کی بھتیجی رسیوں میں دفن ہے۔ جس کو غسل کے لیے شام والوں نے پانی بھی نہ دیا۔ کائنات کا شریف ترین امام، کسی کو نہ کچھ کہنے والا، کسی سے نہ کچھ سننے والا۔ جب زہر ملی ہے نا میرے بادشاہ کو، میرے مالک اٹھے اور سیدھے آئے ہیں قاسم کی ماں کے گھر۔ مولا نے، امام حسن نے آ کر دروازے پہ دستک دی۔ بی بی فروہ نے دروازے پہ آ کر، کون؟ حسن کی آواز آئی، فروہ دروازہ کھول۔ بی بی فروہ نے دروازہ کھولا تو حالت کیا ہے؟ امامہ کھل کے گلے میں ہے، رنگت چہرے کی زرد ہو چکی ہے، ہاتھ میرے بادشاہ کا جگر پہ ہے، جسم میں میرے بادشاہ کے کپ کپی تاری ہے۔ فروہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، مولا یہ آپ کی حالت کس نے کی؟ حسن رو کہتے، میری حالت چھوڑ، میرا قاسم جگہ، مجھے چھوڑ، میرا قاسم جگہ۔ ماتمیوں کی رونے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب میرے بادشاہ حسن کو زہر ملی،
जनाब कासम की उम्र कितनी थी? मैं वजह पढ़ने लगा, उम्र पढ़ने लगा हूं, बेसाख्ता हाय कहना। कासम की इतनी ही उम्र थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की उम्र। 3.5 साल का सिन था। वो जिसकी मुहर्रम में मेहंदियां उठाते रहे हो ना, 3.5 साल का था वो शहजादा। जब माँ ने आके बिस्तर से उठा के बाप के सीने पे लिटाया, बाप के सीने पे कासम का आना था, आंखें खोल के कहता है, अम्मा तूने मुझे गरम रेत में क्यों सुला दिया? रो के कहती, आंखें खोल, गरम रेत नहीं, बाबे का सीना। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह इन आवाज़ों पे रहम करे, मोहम्मद की बेटियां तुम्हारी चीखों को कबूल करे। बाबे की दाएं और बाएं से दाढ़ी चूमी, दाढ़ी चूम के कहता, बाबा तेरा सीना इतना गर्म क्यों है? मौला हसन की आवाज, कासम आंखें खोल, फूफी के घर जा। यहीं पे मैं जुमला रो के मुसाइब रो के एक दुआ करने लगा हूं। तुम्हें इस जनाजे का वास्ता आमीन ऊंची आवाज में कह देना, मेरा अल्लाह कोई बहन सो रही हो उसे भाई की मौत की इतला ना मिले। सोई हुई बहनों से भाई की मौत की इतला बर्दाश्त नहीं होती। हसन की आवाज आई, कासम जा फूफी के दरवाजे पे जाके कहे, अम्मा मैं यतीम हो गया। बड़ी रूहानियत मजलिस में, बड़ी कबूलियत मजलिस में। इब्तदाए मुसाइब बता रहा है कि शाम वाली बीबी आ गई है, जनाजे के वारस आ गए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी बहन का भाई मर जाए। दूर से आने वाली बहन तो देर से आती है, लेकिन जो सबसे करीब हो वो सबसे पहले आ जाती है। आज है हसन का जनाजा, शाम वाली देर से आई हो, लाहौर वाली तो सुबह से बैठी है, रो के कह रही है, उठाओ मेरे गरीब का जनाजा, करो मेरे हसन का माता। आज रोको कासम, जा फूफी को जाके बता मुझे जहर मिल गई है। जितने रो रहे हो तुम मुझे जवाब देना, 3.5 साल के बच्चे को मौत की इतला देनी आती है? कासम रो के कहता, बाबा मैंने कहना क्या है, इतना जुमला कहना था। हसन कहते करीब आ। कासम करीब आया, मौला हसन ने कासम के सर से अमामा उतारा, कासम का गिरेबान चा किया, कासम की आस्तीन ने उल्टी रेत उठा के कासम के सर पे डाली, रो कहते अब कुछ ना कहना, तेरा चेहरा देख के पहचान, तू अब बोलना ना, तेरा चेहरा देख के पहचान कि तू यतीम हो गया। कासम ने खुली आस्तीनें देखी, फटा हुआ गिरेबान देखा। मौला हसन की आवाज़, कासम जी बाबा, अगर मेरी बहन सो रही हो जगाना ना, दरवाजे पे बैठ जाना, नमाज शब के लिए उठेगी अली की नमाजी बेटी, उसे मेरे जहर की इतला दे देना। रात का यही पहर था, रोता हुआ कासम मदीने की गलियों में कभी आस्तीनें देखता, कभी अपने सर पे रे देखता। रोता रोता कासम पहुंचाए आलिया के दरवाजे पे, कासम ने दरवाजे को हाथ रखा, दरवाजा बंद मिला। कासम रोता रोता ज़ैनब के दरवाजे में बैठ गया, दरवाजे के साथ सर लगा के रो के कहता, फूफी दरवाजा खोल, फूफी मैं यतीम हो रहा हूँ, फूफी मेरे बाबे को जहर मिल गई। बिस्तर से तड़प के उठी अली की बेटी, रो के कहती, फिजा जल्दी कर, चराग रोशन कर। बीबी फिजा दे कहती, बीबी अभी तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ, रो करी चराग रोशन कर, दरवाजा खोल, मैंने ख्वाब देखा है, मेरी माँ का पहलू से हाथ उठा हुआ है, रो रो के कह रही तू सो रही है, ओए मेरा घर उजड़ गया और मेरा चराग बुझ गया। हौसला 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 हौसला, बिठा देना इस बच्चे को, पकड़ के बिठा दो, पकड़ के बिठाओ, हौसले के साथ, हौसले के साथ। अम्मा फिजा चराग रोशन कर, अम्मा
अम्मा फिजा मेरी माँ का पहलू से हाथ उठा हुआ है। मैं रुक गया था ताकि कोई ऐसा बंदा ना हो जो गिरिए से खाली रह जाए। आवाज़ें इतनी बुलंद होगी कि शाम वाली बीबी राजी हो जाएगी। फिजा ने चराग रोशन किया, पीछे ज़ैनब, पीछे कलसूम, दोनों अली की बेटियां चली। फिजा ने दरवाजा खोला, कासम का सर ज़ैनब के कदमों पे आया। बीबी फिजा ने करीब चला किया, रो कभी बेटा कोई चीज मांगनी है सुबह आ जाना, अभी तो सैयदों के घर से कोई भी फकीर लेने नहीं आता। कासम की आंखें खुली, रो के कहा माँ मैं तेरा कासम। ज़ैनब रो के कहती मैं सदके जाऊं मेरा अमीर कासम। रो के कहता अमीर नहीं तेरा यतीम कासम। रख दिया मातमियों ने मस्तूरात में जनाजा। जितनी बैठी है हमारी माएँ बैठी है ना, हमारी बहनें बैठी है ना, सर पे इनके कुरान रख के बताओ सैयदों ने जनाजा फूलों के साथ सजाया हुआ है। रख मेरे सर पे कुरान, ज़ैनब ने फूलों के साथ भेजा था। जब जनाजा घर वापस आया, ज़ैनब ने हसन के जनाजे से तीर भेजा। रो के कभी नाना तू तो कहता था हसन मेरा अमीर बेटा है, हुसैन मेरा गरीब बेटा है, अपने अमीर का जनाजा दे। इजाजत दो तो मैं शहादत करूं। रख दिया जनाजा। अब हमने इंतजार करना है दूसरे जनाजे का। मैं मिन्नत करूंगा जो जनाजा लेके खड़ेगा, इशारा करूं तो जनाजा लेके। अम्मा अम्मा मैं तेरा यतीम कासम। बीबी आलिया ने कासम की हालत देखी, रो कभी कलसूम जल्दी बुरका ले, और मेरा पेका घर उजड़ गया, और मेरी माँ की हवेली बर्बाद हो गई। और अभी तो मैं माँ के जख्म नहीं भूली, और अभी तो मैं बापे की फटियां नहीं भूली। इधर से अली की बेटियां रोती हुई हसन की हवेली में दाखिल हुई। हालत क्या है, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं। इधर से जनाब फरवाने ज़ैनब की चीख सुनी, फरवाने हसन के जिगर के टुकड़ों पर करबला डाला। बीबी ज़ैनब कांधे से पकड़ के दी छुपा दो, मैं हाथों पे लेने आई। ना छुपा और मैं हाथों पे लेने आई। आ गई सारी औलाद, सारी औलाद जख्मी हसन। हसन की आवाज आई, मेरा हुसैन का दायां हाथ चूम के कहता यहां करो। फरमाया हुसैन मुझे अपना हाथ दे। कैसे पढ़ाऊं, कैसे सुनेगा? हसन की आवाज आई, मुझे बताओ मेरी बहनें कहाँ हैं? फिजा की आवाज है, तेरी पाँव में बैठी रो रही है। हसन ने तीनों बहनों के चादर के पल्लू पकड़े, हुसैन के हाथ में लिए, रो दिया हुसैन मेरे बाल, मेरी बहनों का ख्याल रखना। इतना कहना था, हुसैन ने मुट्ठी खोल दी, हसन की आंखें खुली, हुसैन ने भाई के गले में बाहें डाली। फरमाया पर्दों की जमानत लेनी है तो गाजी को बुला, पर्दों की जमानत लेनी है तो अब्बास को बुला। इधर से अब्बास ने दरवाजे पे टक्कर मारी, रो के कहता दे दो मुझे इजाजत। खत्म कर दिया। भाइयों ने गौसल दिया, भाइयों ने कफन दिया। जितने बैठे हो हर बंदे ने हर घर में मौत देखी है। मौत का वक्त बड़ा मुश्किल होता है। अगला वक्त कौन सा मुश्किल होता है? जब घर से किसी भाई का जनाजा उठाना हो। मैंने अपने
अपनी आंखों से मंजर देखा है, बंदे बार बार अंदर जाते हैं, वापस आ जाते हैं, रो के कहते हम जनाजा उठाने जाते, बहनें उठाने नहीं रही, भाई का जनाजा उठाते, कभी कोई बहन आगे आ जाती है, कभी कोई बहन आगे आ जाती है। हुसैन हसन का जनाजा उठाने गया, कभी शहर आ गए, कभी कलसूम आ गए, रो के कहती ना लेके जा, ओए उम्मत दीन लेके खड़ी है, ओ मेरा नफीस आजाद। बैठे रहना, बैठे रहना, बस इस जनाजे का दीदार करो, ज़ियारत करो, अगला जनाजा आएगा और यहीं पे मातम की आवाज आ जाएगी। मुझे एक बार इस जनाजे का जाना सुनाओ, फिर उस जनाजे का आना सुनाओ। एक बार किसी ने जनाजा देख लिया, अब तुम्हें इसी जनाजे की कसम मेरी तरफ देखो। भाइयों ने जनाजा उठाया, जनाजा मदीने के बाजार में आया। बाबा नासिर जाती मैं मरना चाहूं अगर मैं जुमला छुपाऊं, जब पे गैरतों ने हुसैन के सामने खड़े होकर कहा किसका जनाजा है, हुसैन ने कहा मेरे भाई को जहर मिल गई है, कहाँ लेके जा रहा है, फरमाया पहलू मोहम्मद में दफनाने जा रहा हो। ये बेगैरत कहते मार के कहते हैं मोहम्मद की कब्र तुम सैयदों की जगीर नहीं है। जनाजा एक कदम आगे बढ़ा, हम जनाजे को जख्मी कर देंगे। हुसैन ने नजरें उठा के देखा, एक औरत छत पे बैठी थी, उसने सफेद रुमाल से इशारा किया, 300 तीर कमानों से आया, इधर से 300 तीरों का कमानों से आना था। अब्बास ने जनाजा छोड़ा, जनाजे के सामने हाथ फैला के खड़ा हो गया, रो गया जितने तीर मारने, ओए मुझे मारो, ओए करबला जाना, ओए जितने तीर मारने हैं, ओए उतने तीर मार देना, ओए मेरे हसन का जनाजा, ओए मेरे गरीब का जनाजा, June